Can a student be an entrepreneur at the same time? To be honest, yes, it is very much possible. In this episode, we're going to introduce you to one such individual who, in spite of being a full time student, started his own venture and is running it successfully. We're in conversation with Deepak Meena, who is a final year BTech student at IIT Guwahati. He co founded his startup Flyzy with his friend a year ago during this pandemic and actually made it successful. Today, he has ties with 6 international airports across the country. His startup is recognized by Startup India and has been covered by most of the big newspapers. Amazing, right? Let's dive into the conversation with him and learn from his strategies. Hi, welcome to the show. It's our third episode of the VC Stories podcast with founder. So let's start with the basic one. So can you give us a brief about yourself? Yeah, sure. So, my name is Deepak Meena. I am the CEO and co-founder of Flyzy. So, Flyzy is world's first digital master concessionaire. So, अगर आसान भाषा में बोलो तो what we are doing, we are I would say e-commercializing or we are a marketplace for all the travel retailers. जैसे आप कभी स्टेशन पे जाते हैं या फिर एयरपोर्ट पे जाते हैं तो जो शॉप्स होते हैं so that are not digitally present right now. So we are a marketplace for all this particular thing. So we are a travel retail technology startup, and we are like our main mission is to digitalize the whole travel retail industry. So, and we have started with the air travel, like airports हमने पहले start किया था. And this is about my startup. And if I talk about myself, so I am doing my BTech. I'm in my final year at IIT Guwahati. So I am doing my BTech from chemical science and technology. So it's a sort of a BTech stream, and currently I'm of like 21 years old and I'm in my final semester. Yeah, that's really great. Starting something at very young stage. So I would just want to know about how you get about this idea, like why tour and travel industry, and what is your thinking process at that time when you were thinking about this idea? So basically, it was not my intention to do anything in the, I would say, travel industry or in particular travel retail industry. It was just I wanted to do something of my own. Like since the starting, I tried a few ideas, but I got failed. Uh, but it wasn't related to an incident. Like so, just to give a brief about that. So I was going to US for a conference. So the like the flight for US was from like Delhi to Beijing, and then from Beijing to New York. But Badkismati is my flight from Delhi to Beijing got delayed, and the next flight from Beijing to New York, I missed that flight, and I had to spend around 18, 19 hours at the Beijing airport. And you can understand like the spending that much amount of time at the any like a region in the China without having contact to the outside world is quite I would say difficult. तो एक चीज जो मुझे समझ में आई उधर इज लाइक कि द पैसेंजर जिस दिन ट्रैवल कर रहा है they have no information about the flights. Like they have no information about what's there at the airport. So the Beijing airport, it's too big. Like कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मतलब हद से ज्यादा बड़ा है ना. और I am a vegetarian and I just wanted to have something because मैंने कुछ नहीं खाया था. बस एक वेज सैंडविच ढूंढने के लिए मुझे 2 घंटे लग गए, घूमना पड़ गया पूरे एयरपोर्ट पे. एंड आई वाज लाइक आई एम नॉट द ओनली वन की जिसे ये प्रॉब्लम फेस की होगी. देयर माइट बी द अदर पीपल आल्सो. And from there, I started. I was exploring this industry because I had nothing to do. I wanted to do something of my own, and I just got something कि यार चलो इसे ट्राई तो कर लेते हैं. पहले भी ट्राई किए, कुछ आइडियाज फेल हो गए, इसे भी करेंगे, फेल हो जाएगा, अगर चल गया तो किस्मत है. So from there, I got into this industry. Yeah, then मतलब वो जो आइडिया जनरेशन प्रोसेस थी हर एक को मतलब काइंड ऑफ एक स्टिंट होता है जिसकी वजह से आती है. सेम थिंग फॉर यू, राइट? सो for an entrepreneur who wants to enter into a very high regulated market like you have entered into a travel space, so how can someone find connections and compile the regulations issue and all मतलब सब issue मतलब वो पूरे कर सके this thing? So one thing which is I would say a drawback for of a highly regulated market, जैसे aviation हो गया, travel industry हो गई, is like if you don't have the experience in that particular industry, it's very hard for you to crack. And for like guy like me जिसे जो अभी बाहर ही निकला कॉलेज से, मतलब जिसे इंडस्ट्री का मैंने इंटर्नशिप भी अपनी नहीं की थी, तो आई हैव नो एज सच कॉर्पोरेट experience apart from my startup.
कि और कहीं काम करने का एक्सपीरियंस है, आई डोंट हैव एनीथिंग लाइक दैट. सो इन दिस थिंग जो आई वुड से द इंडस्ट्री पीपल हेल्प्स अ लॉट, क्योंकि दे नोस ऑल द रेगुलेशंस. यू नीड नॉट टू गो थ्रू ईच एंड एवरी रेगुलेशन और ईच एंड एवरी आई वुड से compliances which are there, and they also knows how you can make that particular thing possible. So what I did, I had like none, I also don't have any such, my family basically have no background in the aviation or travel industry. They all are from the government, I would say, sectors only. So what I did, LinkedIn था, तो LinkedIn पे मैं जाता था, मैं लोगों से कनेक्शन बनाता था, लोगों से पूछता था कि दिस इज द पर्टिकुलर लाइक डाउट आई हैव, और दिस इज द पर्टिकुलर थिंग व्हिच आई वांट टू नो. एंड what I observed is कि लोग help करते हैं. If the experienced people, the industry people, if you ask them for a particular, I would say, advice on particular thing, they literally help you. So LinkedIn was the thing. This I got to like I got all our advisors जो currently हमारे साथ है. So जितने भी हमारे advisory board में है, so I got all of them from LinkedIn connections only, and I used to talk with them and understand the industry in a better manner. So I guess that's the I would say one of the major thing, or one of the most important thing a person who has no experience and is like planning to go into a highly regulated market should do. Apart from that, read about the industry. So regulations, compliances, या फिर जो भी चीजें हैं कोई भी इंडस्ट्री के बारे में, इंटरनेट पर ढेरों आर्टिकल्स, ब्लॉग्स पढ़े हैं, सब कुछ पढ़ा है, बहुत सारी चीजें पढ़ी है ना. जैसे ट्रैवल, एयर ट्रैवल इंडस्ट्री को अगर मैं बताऊं तो दो मेन बॉडी वर्ल्ड की चलाती है, जो है आईटा जो एयरलाइंस को करती है, और एसीआई सॉरी जो एयरपोर्ट्स को करती है. मुझे पहले इनके बारे में कुछ आइडिया नहीं था, बट यही सारे रूल्स रेगुलेशंस वगैरह बनाते हैं कि यार कैसा होगा ये सब कुछ. तो इसके बारे में पता चलता है. दे हैव अ लॉट ऑफ ब्लॉग्स कि इफ यू वांट टू डू समथिंग, दे हैव द ब्लॉग, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड सम टेक्निकल और बिजनेस आंसर ऑफ एनीथिंग, इट इज देयर ऑन द इंटरनेट. So I guess regulation is a literally very hard thing in such a high regulated market. So yeah, to get to know about regulation always give you a head start. So but according to me, like co-founder भी तो बहुत important role play करते हैं ना, because you cannot do everything on by yourself. ठीक है, तुम नहीं पता लगा सकते क्या क्या चीजें चल रही है. So according to you, what kind of major roles a co-founder play, and एक बंदे को how will you decided to choose that person as your co-founder? What are the main traits you are looking for? So co-founder में बेसिकली में दो चीजें मेरे हिसाब से, दो अलग अलग आई से सिनेरियोस होते हैं. एक होता है कि आपने जॉब कर ली, मैंने जॉब की है, मैं जॉब के बाद में 3 साल बाद मैं चाहता हूँ कि मैं मेरा स्टार्टअप करूँ. मुझे इंडस्ट्री का भी, थोड़ा कॉर्पोरेट का भी नॉलेज है, मैं बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, और उधर से मैं co-founder स्किल बेसिस पे लेता हूँ. अच्छा मान लो आई एम मैनेजमेंट गाय, आई एम बिजनेस गाय, सो आई वांट अ टेक्निकल गाय, तो मैं अपने कलीग्स या अपने कोई सर्कल में ऐसे लोगों को ढूंढूंगा जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड है, या फिर जो टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं. बट एक केस होता है मेरे जैसे जो स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स है, जिन्हें बस अपने घर परिवार, अपने दोस्तों से आगे दुनिया नहीं देखी होती है और नहीं जानते वो लोगों को. और हर एक दूसरे स्टार्टअप की तरह इस स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर के केस में आई वुड से 90% ऑफ द केस उनका जो सबसे अच्छा दोस्त होता है ना, वही उनका पहला को-फाउंडर होता है, और मेरे केस में भी वही था. तो हंसराज वाज द फर्स्ट को-फाउंडर, एंड बेसिकली हमारे रूम्स आजू बाजू में ही थे. तो आजू बाजू में तो क्या मतलब 2 रूम्स थे, बट हम एक ही रूम में रहते थे मोस्ट ऑफ द टाइम. एक रूम में सामान पड़ा रहता था हमारा. तो उधर से मैंने उसे पिच किया, एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि एक को-फाउंडर से जो मुझे लगता है, बोलते ना क्या बोलते, वो क्वालिटी होनी चाहिए, इज ट्रस्ट. क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे केस स्टडीज देख लोगे, फेसबुक का बहुत बड़ा केस स्टडी है, या फिर कोई भी दूसरे भी बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जहां जो दगाबाजी या फिर ट्रस्ट ब्रेक होता है. और इन द इनिशियल लेवल जब आप कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि वो को-फाउंडर में दूसरी टेक्निकल या फिर आई वुड से थियरिटिकल नॉलेज हो या ना हो, बट एक ट्रस्ट आप कर सकते हो कि हाँ ये बंदा मेरे साथ काम करेगा. सो दैट फर्स्ट थिंग, लाइक आप अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ कर सकते हो. सो हंसराज वाज द फर्स्ट गाय, एंड द सेकंड को आई वुड से थर्ड को-फाउंडर बेसिकली अर्जित, जो शायद से हंसराज आया उसके 3-4 महीने बाद अर्जित आया था. तो इट वाज नॉट लाइक अर्जित वाज माय बेस्ट फ्रेंड. we were just friends from different colleges. We met at a conference, उधर मिले थे, and we were just sort of normal friends. But the thing is,
कि उस बंदे को भी कुछ करना था अपना, बट ही हैड नो आइडिया कि क्या करना है ना। एंड उस टाइम ये था कि हम दोनों वर्कलोड नहीं संभाल पा रहे थे, एंड वी नीडेड समवन जो थोड़ा थोड़ा अलग से सोचता हो हम दोनों से। हम बहुत ज्यादा, आई वुड से, हम इतना क्रिटिकल मैनर में नहीं सोचते थे, क्रिटिसाइज नहीं करते थे। एंड जो चीज मुझे उससे अर्जित से बात करके पता चली कि ही इज अ पर्सन जो क्रिटिसाइज करेगा आपके आइडिया को, आपको बोलते हैं ना डेविल्स एडवोकेट, मतलब अगर टर्म यूज कर तो वो वाला रोल प्ले करेगा। तो हंसराज पूरा दोस्त की तरीके से आया था कि दोस्त है भाई, ले आओ इसे, है ना, और कुछ मैंने नहीं देखा था। अर्जित आया था कि यार ये बंदा हमारा जो लूप होल है या हमारा जो गैप है वो फिल कर रहा है, और ये दोस्त तो है ही, चलो। और धीरे धीरे वो ट्रस्ट भी बिल्ड हुआ हमारा, मतलब जितना काम करोगे वो तो होते जाएगा। एंड फाउंडर काफी इंपॉर्टेंट होता है, मतलब मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी फाउंडर, एंटरप्रेन्योर जिससे स्टार्टअप करना है, फाउंडर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। या सो सही बात है, मतलब अकॉर्डिंग टू मी जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होता है, तो ही विल बी द बेस्ट सुटेबल पर्सन एज अ को फाउंडर, बिकॉज वैल्यूज जो होती है, वैल्यूज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू स्टार्ट एनी काइंड ऑफ बिजनेस। लाइक अगर हम दोनों की वैल्यूज डिफरेंट होगी, देन इट विल मेक अ रियली बिग गैप बिटवीन अस एंड आवर कंपनीज विजन। सो या इसमें इट्स ग्रेट। एक चीज ऐड करना चाहूंगा व्हिच आई फॉरगॉट टू मेंशन। सो इसमें हर बार होता क्या है कि एक कॉमन आई वुड से टर्म है कि एक फाउंडर फ्रेंड हो ना, काफी डिफिकल्ट हो जाता है उसे लॉन्ग टर्म सस्टेन करना। और ये मैंने ऑब्जर्व किया। चलो हंसराज इज एन एक्सेप्शन, ही वाज अ पर्सन की जिसे स्टार्टअप करना है, लाइक स्टार्टिंग से नहीं पता था, बट ही इज अ पर्सन हु इज अ रिस्क टेकर, आई वुड से, कि ही डोंट हेजिटेट टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क। तो ही वाज, एंड अरिजीत इज द सेम गाय जो रिस्क टेकर है। बट मेरे बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं जिनमें नॉलेज बहुत ज्यादा है, लाइक दे आर वेरी मच नॉलेजेबल, बट they don't suit like, or they are not the fit for the co-founder, for like to be a co-founder, क्योंकि they are not that much, I would say, sort of risk taker आप बोल लीजिए, या फिर कुछ भी। तो हर वक्त जरूरी है कि आपका बहुत अच्छा दोस्त हो, वो होना चाहिए उसमें। एक ही रिस्क टेकिंग क्वालिटी अगर आपको दिख रही है तो या that person might be your co-founder. या ट्रू। सो मतलब आइडिया हो गया, को फाउंडर मैच हो गया। सो व्हेन डिड यू डिसाइड या नाउ इट्स द टाइम टू लॉन्च योर बिजनेस? सो इसमें ऐसा मैंने कोई टाइम फ्रेम डिसाइड नहीं किया था। सो जैसे मैंने No, बताया था it's कि आई not गॉट about दिस। the time frame. It's about that point. Yeah, now you are ready. It's about your readiness, not that time frame as such. It's about your हाँ readiness. हाँ हाँ, तो रेडीनेस का बेसिकली द फर्स्ट थिंग, लाइक बिफोर आई डोंट एनीथिंग, कि जो मेरा पहले जो भी थोड़े आइडियाज पे मैंने काम किया था, तो पहले ही जो बात पता चली थी कि डजेंट मैटर आपको एक थॉट आ गया, आइडिया है, क्योंकि आइडिया तो बहुत ज्यादा आता है आपको पूरे, मतलब हर लोग को, हर दूसरे इंसान को कुछ ना कुछ आइडिया आता है। बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप उसे फॉर्मुलेट कितना अच्छी तरीके से करो, उसे आप रिफाइन कितना अच्छी तरीके से करो, उसका बिजनेस एक्सपेक्ट, उसकी फिजिबिलिटी आप चेक करो। तो ये टास्क किया था। तो इसके लिए व्हाट आई डिड, मैंने मैं बोल रहा हूँ जीरो कोडिंग और बहुत मिनिमम कोडिंग से एक एप्लीकेशन बनाया था। इट वाज आई गेस दिसंबर 2019। तो जितना भी मुझे टेक्निकल नॉलेज था, आई एम नॉट दैट मच अ टेक्निकली साउंड पर्सन, बट जितना भी था उससे मैंने थोड़ा सा ऐप बनाया। देन आई वेंट टू माय को-फाउंडर हंसराज, उसे बताया भाई ये चीज है, इसे, ये तो स्कूल प्रोजेक्ट की तरह दिख रहा है। एंड देन आफ्टर आई शोड दिस टू द इंडस्ट्री पीपल आल्सो, उन्होंने एडिट्स बोले। एंड आफ्टर वी ऑल थ्री ऑफ अस केम, एंड एक लगा कि नहीं यार, एक एमवीपी बन गया। एमवीपी मेनली होता है कि आपका ना सुंदर ना दिखे कोई दिक्कत नहीं, बट आपका जो की फीचर है वो उसमें दिखना चाहिए, मतलब आपका विजन दिखना चाहिए। ये एक होता है कि अच्छा आप जो बोल रहे हो आइडिया। तो हमारे एमवीपी में क्या था, हमारा जो मेन है कि वी आर ई कॉमर्शलाइजिंग द ट्रैवल रिटेल। और अगर मान लो आप एयरपोर्ट पे जा रहे हो, तो एयरपोर्ट पे जाने से पहले आप ऑर्डर कर सकते हो और आपके गेट पे वो पर्टिकुलर आइटम डिलीवर हो जाएगा, वेदर इट्स फूड और एनीथिंग लाइक दैट। तो अब वो एमवीपी तो हमें बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि एयरपोर्ट से टाई अप करना पड़ता है, ये वाली चीज। तो हमने क्या किया था, हमने सारे जितने भी आउटलेट्स थे सबकी लिस्ट डाल दी थी। जैसे आप देख तो सकते हो, ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते, बट आप यू कैन सी दैट पर्टिकुलर थिंग एंड यू कैन गेट द रियल टाइम स्टेटस ऑफ द फ्लाइट। तो उससे हम एक बोलते हैं ना छोटा सा बना दिया उसके। अब जब इन्वेस्टर का किसी को भी, हमारे एडवाइजर को पिच करते थे, तो हम बोलते थे दिस इज आई वुड से अ कोर, एंड इसके आजू बाजू हम एक बड़ा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। सो एमवीपी
बस आपका विजन एक अच्छी तरह शोकेस करे, नॉट टू बी दैट मच सुन बोलते हैं अट्रैक्टिव, मतलब विजुअली अट्रैक्टिव, क्योंकि उसमें टाइम लगता है. Correct. So I guess you are a non-technical co-founder, so your question will be more suitable to you. Like, what are the key resources at the time when you were planning to launch your MVP? So, being a non-technical co-founder, what were the key resources you gone through to make your MVP ready for the launch? If you want to share any of the key resources. Yeah, sure. So if I talk about like MVP, तो एक जो हम स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, है ना, MVP कभी भी मतलब मैं बाहर लोगों को देना होता है, नॉट ओनली MVP, अभी भी हम जो ऐप बनाते हैं एंड उसके भी जो अगर कुछ ऐसा फीचर है हमने अलग से बनाया है उसका भी टेस्ट करना हो, व्हाट वी डू, वी गिव आउट टू द पीपल. क्योंकि थोड़ा सा बेसिक सा बनाया हमने, नी नॉट टू बी, जैसे मैं बोला था, नी नॉट टू बी दैट मच ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव, बेसिक सा बनाया, गिव आउट टू द पीपल एंड टेक द रिव्यूज. क्योंकि एक बहुत कॉमन आइडियोलॉजी और कॉमन सेइंग है कि इन स्टार्टअप बिल्ड फास्ट फेल फास्ट, मतलब जितना जल्दी आप बिल्ड करोगे फेल होगे उतना जल्दी आप सीखोगे. क्योंकि एक स्टार्टअप में टाइमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और अगर आपने ज्यादा टाइम लगा दिया किसी चीज को बनाने में या फिर किसी चीज को बहुत ज्यादा सुंदर बनाने में जो रिक्वायर्ड है, तो आपका वो पर्टिकुलर स्वीट स्पॉट जो होता है टाइम का, दैट माइट गो अवे. मतलब ऐसा नहीं कि एक दो दिन डिले हो गया, दैट इज नॉट अ थिंग, बट महीना भर या साल भर अगर ज्यादा डिले हो गया, देन टाइमिंग काफी फर्क पड़ता है उससे. तो व्हाट वी डू, हमने एमवीपी बनाया था, तो हमने बोलते हैं ना, हर एकदम मैं कभी ढीठ इंसान की तरह हर किसी को डीएम किया. डजेंट मैटर मैंने उस इंसान को कोई बात में नाम भी नहीं जानता, बस फेसबुक के दोस्त है, जैसे मेरे शायद से 1500 के आसपास दोस्त है, सबको मैंने डीएम किया कि यार ये दिस इज द थिंग, गिव योर रिव्यूज. और ये बात है, आई रिमेम्बर जब मैंने बेसिक सा बनाया था, फेब मार्च की बात है, तो थोड़ा सा उनके रिव्यूज लिए थे, एंड कुछ देते कोई नहीं देता रिव्यूज, बट पॉजिटिव नेगेटिव, द फर्स्ट थिंग वी गॉट टू नो फ्रॉम दैट थिंग कि ये लोगों को चाहिए ये चीज, है ना. अब और हमने एमवीपी में इतना खर्चा नहीं किया था, मतलब बहुत नेग्लिजिबल सा खर्चा था, है ना, नेग्लिजिबल इन द सेंस 4-5 thousand ही शायद से था एक्सपेंस हमारा. और एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि अच्छा लोगों को ये चीज हमें चाहिए, मतलब लोगों को ये चीज चाहिए और हम सही वे में जा रहे हैं. तो ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव था. तो कभी भी आप एमवीपी हो, गिव आउट टू द पीपल्स, लोगों से रिव्यूज मांगो, लोगों से बोलो यूज करें इसे, और उनका जो भी फीडबैक आ रहा है उसके हिसाब से काम करो, है ना. एंड क्योंकि से एक तो आपको ये पता चला कि आप सही वे में जा रहे हो कि नहीं, एक दूसरा ये पता चला कि क्या लोगों को चाहिए एक्चुअली. तो लेटेस्ट अगर मैं हमारा एक्सपीरियंस बोलो, तो हमारे लाइक वी आर नॉट, आई वुड से एनेबलिंग टिकट बुकिंग, फ्लाइट में जो टिकट बुकिंग, फ्लाइट टिकट बुकिंग, वी आर नॉट एनेबलिंग दैट, बट we got that feedback from the people that they want that particular thing. They want कि अच्छा आप टिकट बुक करो, सब कुछ हम लाइक हमारा ऐप देख ले, क्योंकि एज ऑफ नाउ you can do the web checking from the application, you get the boarding pass, you can place the order, that but ticket booking was a thing which was missing. So लोगों का फीडबैक ये था कि यार ये चीज आएगी तो बहुत अच्छी बात है, कि there might be something which you have never thought of or which you are thinking is a या ये काम नहीं करेगी बट लोगों को चाहिए. तो जब लोगों से आप लोगों को देते हो तो ये एक फीडबैक बहुत अच्छा मिलता है. और ये मेरा बेसिकली ऐसा कोई टूल नहीं है, बट एक स्ट्रेटेजी है जो हम फॉलो करते हैं. So ट्रैवल इंडस्ट्री तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुई है कोविड की वजह से. तो इफ यू वांट टू गिव सम इंटरेस्टिंग, इफ यू वांट टू गिव समथिंग और टेल something to our users, our sorry viewers, so like how your startup got impacted by the COVID, it will be very great. या सो कोविड ना, मतलब कोविड जैसे सेकेंड वेव चल रही है, तो इसे भी मैं फर्स्ट और सेकेंड वेव, क्योंकि फर्स्ट वेव में हम स्टार्ट हुए थे, अगर हम प्रॉपरली जब फ्लाइजी स्टार्ट किया था हमने, दैट वाज अराउंड अप्रैल लास्ट ईयर, मतलब एक साल पहले, है ना, अभी से एक साल पहले. तो दैट पॉइंट इन टाइम वी हैड नथिंग, मतलब हम 3 लोग थे और हम ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट भी रेज नहीं किया, एंड वी हैड नथिंग, आई वुड से लायबिलिटीज एज सच, है ना. और उसमें काफी बोलते मैं सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलूंगा, क्योंकि लोग जो एयरपोर्ट्स है, मतलब थोड़ा टेक्निकल ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा, बट एयरपोर्ट से उन्हें समझ में आया था, मतलब कि लोगों से कनेक्ट कितना करना कितना इंपॉर्टेंट है. अभी क्या होता है कि एयरपोर्ट
अभी के मतलब कोविड से पहले एयरपोर्ट का जो पूरा रेवेन्यू, पूरा तो नहीं बोल, मैच्योरिटी ऑफ द रेवेन्यू एयरलाइंस के ऊपर डिपेंडेंट था कि एयरलाइंस जो भी पे करती है उसके हिसाब से उन्हें रेवेन्यू मिलता है ना। बट एयरलाइंस इफेक्ट हुई है ना, और एयरलाइंस इतनी ज्यादा इफेक्ट हुई कि जब रिज्यूम हुआ अपनी ट्रेवल, मतलब क्या बोलते हैं, फ्लाइट्स रिज्यूम हुई, तो अभी भी वो रेवेन्यू देने की हालत में नहीं थी, और अभी भी नहीं है, और अगले 3-4 सालों तक शायद से ना हो, है ना। तब एयरपोर्ट को हाँ, तब एयरपोर्ट को समझ में आया कि उन्हें एक एडिशनल रेवेन्यू सोर्स की जरूरत है, और एयरपोर्ट के पास दो ही रेवेन्यू सोर्स होते हैं, मतलब मेन प्रॉब्लम है ना, एक एयरलाइन होता है, एक होता है नॉन एयरलाइन रेवेन्यूज, जिसे टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यूज, जो कि आता है जो भी मतलब बोलते हैं ना सेल्स होती है, या फिर जो भी पैसेंजर बाय करते हैं उधर लॉन्चेस, F&B, ड्यूटी फ्री, इन सब से। तो तब एयरपोर्ट को समझ में आया कि यार फर्स्ट वे जब हम गए थे कि they need an online platform where they can market or they can show the products or the services which is there to the passengers without spending too much on the marketing, क्योंकि अभी क्या बोलते हैं एयरपोर्ट पे अगर आप बड़े स्टैंडीज लगा रहे हो, बैनर्स लगा रहे हो, दैट कॉस्ट अ लॉट, एंड इतनी अच्छी किसी की कोई भी ट्रैवल रिटेल कंपनी की हालत नहीं कि वो बहुत ज्यादा स्पेंड करे उस टाइप ऑफ मार्केटिंग में। उस वक्त ये फायदा हुआ कि वी गॉट 6 एयरपोर्ट्स विद अस, मतलब हमारे पास 6 एयरपोर्ट आ गए, एंड दैट वाज अ टाइम वेयर इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हमें लगा था कि कोविड चला गया है, जैसे सबको लगा था जैन फेब में, बट दिस सेकंड वेव हैज इम्पैक्टेड अ लॉट, इम्पैक्टेड अ लॉट आई वुड से, इन टर्म्स ऑफ जो हमने बोलते हैं ना वो लेते कि ऐसा वो प्रोजेक्शंस लिए थे, कैसे रेवेन्यू जनरेशन का हो गया, या फिर जो हमारी स्ट्रेटेजी होगी कि हम एक्सपेंड कैसे करेंगे, तो उस वे में काफी अफेक्ट किया है ये सेकेंड वेव ने हमें। बट एक चीज जो हमने सीखी है कि बस एक फेज है, मतलब सेकेंड वेव वाला भी जो है ना कोविड का एक फेज है फॉर द ट्रेवल इंडस्ट्री, इट विल थोड़े महीनों तक रहेगा, बट बाद में डेफिनेटली द ट्रैवल इंडस्ट्री विल बूम अगेन, इट विल राइज अगेन। बस हमें ये फेज तक थोड़ा सस्टेन करना है, आराम से, ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं करना है, मतलब आराम से चलना है, कोई हड़बड़ी नहीं है, और एक वक्त आएगा थोड़े महीनों बाद ही जब काफी चीजें सही हो जाएगा, ट्रैवल इंडस्ट्री काफी अच्छा बूम लाएगी। Yeah, it's like there is a day after every night. यस। So there is a cyclical trend in every industry, हाँ। economical recession, and then it's something like that. Yeah. या So great. So can you give us any details on how to prepare pitch deck or how to approach an investor to raise funds? And most importantly, when will founders realize that now, yes, now it's the time we should start raising funds? सो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट की क्या बोलते हैं कैसे करना चाहिए, है ना, मतलब फंड रेजिंग Yeah. के लिए पिच डेक कैसे बनानी चाहिए आपको, या फिर किस टाइप के इन्वेस्टर को अप्रोच करना चाहिए, ये कैसे पता चलता है। तो इन द स्टार्टिंग आई वुड से फॉर डजंट मैटर आपकी इंडस्ट्री कौन सी है, रेदर देन फोकसिंग ऑन द पिच डेक एंड द फाइनेंशियल मॉडल जो आप एक्सेल में बनाते हैं, फोकस ऑन द प्रोडक्ट। ये हमने भी गलती की है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि मैं सब कुछ हमने करेक्ट बॉक्स टिक किया है, हमने भी गलती की थी कि रेदर देन फोकसिंग ऑन द प्रोडक्ट वी फोकस ऑन कि यार इन्वेस्टमेंट रेज करना है हमें। और इसका सबसे दूसरा ये आइडिया जो थिंकिंग हमारी थी, बिकॉज कि हम आईआईटी से है, तो आईआईटी से तो नाम सुन के कोई दे देगा, बट ये बहुत गलत सोच थी हमारी, जो हमें अफेक्ट भी की थी ना इन द लेटेस्ट स्टेज, बट हम थोड़ा जल्दी संभल गए थे इस चीज से। इसमें होता है कि स्टार्टअप्स ना, कोई भी मतलब एक अगर आप स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर को देखो तो हर किसी का होता है कि यार फंडिंग लेनी है, आइडिया, मैं मजाक नहीं रहा, आइडिया उनका क्लियर भी ना होगा तो भी बोलेंगे फंडिंग रेज करनी है, एंड दे स्टार्ट वर्किंग ऑन द एक्सेल शीट्स, दे स्टार्ट वर्किंग ऑन द फाइनेंशियल मॉडल, एज्यूम एजम्पशंस करते जाते हैं। बट एक हम तीनों जो बात मानते हैं, मतलब हमारी जो फाउंडिंग टीम है कि एक्सेल शीट तो आप सुंदर बना लोगे, पर उससे पहले आप अपना प्रोडक्ट अच्छा बनाओ, तो अपने आप ही आपकी एक्सेल शीट या जो भी सही हो जाएगी। अब बात आती है कि कब करें। चलो आपने प्रोडक्ट अच्छा बना लिया, अच्छी बात है, अब कब अप्रोच करें और किसे अप्रोच करें, सबसे बड़ा पॉइंट ये है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में किसे, कब और कितना, मतलब लाइक होम, हाउ एंड व्हेन, दिस आर द 3 क्वेश्चंस व्हिच यू नीड टू एड्रेस। होम मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप प्री सीड के लिए कोई वीसी फर्म को अप्रोच कर रहे हो, वो हमेशा बात
हर दूसरा वीसी वेंचर आपसे बात या मीटिंग सेट कर लेगा, बट उनका लास्ट पॉइंट ये होगा, यू आर टू अर्ली फॉर अस। ये वाला कॉमन रहेगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड किसे आपको अप्रोच करना है। सेकेंडली, वही मतलब कौन से स्टेज में हो, और क्या बोलते हैं, ऐसा भी ना हो कि आप सीरीज ए में जा रहे हो, आप कोई फैमिली फंड पे जा रहे हो या एंजल फंड पे जा रहे हो, है ना। और हाउ मच, कितना रेस करना है, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि सबको ये लगता है कि जितना पैसा है उतना सही है ना। बट जब आप इन्वेस्टर के पास जाके ये बोलते हो, तो इन्वेस्टर को पहला थॉट आता है कि यार इस बंदे को ये नहीं पता इसी कंपनी में कितना पैसा चाहिए इसे, तो यूज कैसे करेगा। ये तो बस मान लो मुझे $1 मिलियन चाहिए, वो 1 मिलियन उड़ा देगा, बट एक्चुअल नीड तो उसकी $500,000 की है, तो आधा क्यों ज्यादा क्यों मांग रहा है। और स्टार्टिंग का जो मतलब फंड रेज होता है या फिर जो इन्वेस्टमेंट होती है, लाइक एवरी अदर स्टार्टअप व्हिच कम्स फ्रॉम द फैमिली फ्रेंड्स और आपके कोई रिलेटिव्स। और अगर हमारे केस की अगर मैं बात करूं, वी गॉट इट फ्रॉम वन ऑफ आवर एलुमनी। तो ये हमारे फैमिली फ्रेंड्स में कोई ऐसा मतलब है नहीं जो सॉर्ट ऑफ अमीर हो या फिर इसके पास पैसा हो जो लगा सके। तो ये तो हमारे पास ऑप्शन था ही नहीं कभी फैमिली फ्रेंड्स वाला। बट हाँ, वी गॉट द फर्स्ट इन्वेस्टर फ्रॉम आवर एलुमनी, जो एक एंजल इन्वेस्टर नहीं है, बट द फर्स्ट, ही इज फ्रॉम आवर कॉलेज ओनली एंड ही इज फ्रॉम द इंडस्ट्री। सो he is currently at the PwC Middle East and he was with the Qatar Aviation before. So he is from the industry, तो उन्हें पता था इंडस्ट्री के बारे में, उन्हें आइडिया अच्छा लगा। तो we got a first investment from that particular person। and जैसे जो हमारे आई वुड से पहला प्रॉपर एंजल इन्वेस्टर जो आया था, that a person came through one of our advisor. So one of our advisors, like he was one of our advisors friend, and he got us in touch of him कि अच्छा these guys are seeking the investment, and वो भी ट्रैवल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, मतलब ही रन्स अ ट्रैवल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी। तो वही इंडस्ट्री से है, एंड तो उन्हें भी अच्छी तरह समझ में आया था। तो पहले वाले जो इन्वेस्टर्स आपको होते हैं वो आपके फैमिली फ्रेंड्स होते हैं या फिर इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री वाले लोग होते हैं। क्योंकि अगर आप कोई अलग से इंडस्ट्री में जा रहे हो, हमारे केस में ट्रैवल रिटेल इंडस्ट्री में इतना कोई नहीं जानता। अगर आप कोई भी मतलब इन्वेस्टर को भी पूछोगे ना, उन्हें भी ज्यादा नहीं पता होगा ट्रैवल रिटेल इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि काफी नई इंडस्ट्री है। तो अगर नई इंडस्ट्री में जा रहे हो तो ट्राई टू गेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम सम वेल नोन पर्संस इन द इंडस्ट्री, जिन्हें इंडस्ट्री के बारे में पता भी हो। और अगर आप कोई नॉर्मल आपसे एक वेल नोन इंडस्ट्री में जा रहे हो, फिर भी आपके केस में ये होगा कि आपको फर्स्ट वन तो आपके फैमिली फ्रेंड्स या ऐसे कोई कनेक्शन से ही मिलेगा। Yeah, very true. So, like you have said, like family friend से मिलेगा, but you are very lucky that you got from an alumni. Okay. So, but what are the mistakes like new founders or new aspiring entrepreneur do while starting a startup or while looking for a raise fund? And more importantly, like what is the proper notional amount one should come up with? How one should come up with? Like you have come up with, yeah, you have to raise X amount of money. So इसमें I will say like what mistakes we did while raising the fund. So the first and the foremost mistake we did, we didn't understood how much we actually need. इसमें वे like हमने ना बोलते बहुत पहले उन वीसी से उन इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर लिया था जो बहुत लेटेस्ट स्टेज में आते हैं और अमाउंट हमारा कुछ डिसाइडेड नहीं था। सो जस्ट टू गिव एन आइडिया, सो आई वेंट टू बैंगलोर एंड हैदराबाद, लाइक एक मैंने खुद सॉर्ट ऑफ सेविंग्स करके बैंगलोर हैदराबाद गया, उधर ऑलमोस्ट 55 इन्वेस्टर्स के साथ मैंने मीटिंग सेट की। बट इट वाज जस्ट एन आइडिया स्टेज, मेरे पास एक पीपीटी थी, कुछ भी नहीं था, है ना, जिससे मैं बताता था। एंड एवरीवन वाज लाइक कि क्या बोलते हम क्यों इन्वेस्ट करें। और उस टाइम मेरा ये माइंडसेट था कि यार आईआईटी के नाम से हो जाएगा, बट जैसे मैंने कहा था पहले कि नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको आईआईटी एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड देगा, आईआईटी कॉलेज का नाम आपको रियली मतलब एक फायदेमंद होगा, बट ऐसा नहीं कि आप किसी बस कॉलेज के नाम बोल के पैसा रेज कर ले, ऐसा नहीं होगा। तो डेट वाज द फर्स्ट मिस्टेक कि हमने ये नहीं जाना था कि कितना रेज करना है और कैसे रेज करना है ना। सेकेंडली, एक जो दूसरा मिस्टेक किया था कि कब से स्टार्ट करनी है इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। एक बहुत बड़ा फैक्टर और से ड्रॉबैक है एक इंडियन इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम में कि एवरी अदर इन्वेस्टर
एंजल इन्वेस्टर या हो वीसी इन्वेस्टर, दे वांट टू हैव अ प्योर इक्विटी आई वुड से इन्वेस्टमेंट, सेफ कन्वर्टेबल नोट्स पे नहीं चलते इधर। तो वो जो है ना क्या बोलते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट, प्योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट की, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। लाइक एंजल इन्वेस्टर के केस में 3-4 महीने आराम से लग जाएंगे आपको, क्योंकि ड्यू डिलिजेंस वाली केवाईसी वाली प्रोसेस होती है, अनलेस एंड अनटिल वो आपका कोई रिलेटिव हो, क्योंकि उस केस में आपको ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ती। बट एक प्रॉपर एंजल इन्वेस्टर मांगेगा कि आप ड्यू डिलिजेंस करो, केवाईसी करो, है ना। ये 3-4 महीने एंजल में लगते, बट वीसी में तो ये और भी चला जाता है, 6 महीने से ऊपर भी चला जाता है कभी कभी। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि आप कब रेज, क्योंकि हमारी एक बार हालत ये हो गई थी कि हमें ये सारी चीजें नहीं पता था डीडी और केवाईसी के बारे में, एंड वी वर एट अ स्टेज कि वी हैड ऑलमोस्ट नो मनी इन आवर अकाउंट, एंड हम इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे थे। और उस वक्त समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस ना काफी पहले स्टार्ट हो जाती है, कि आप अप्रोच करो, क्योंकि बहुत बार ये इनिशियल लेवल में आपको नहीं पता चलेगा, बट जैसे स्टार्टअप बड़े होते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि सारी प्रोसेस हो गई, आपका ड्यू डिलिजेंस हो गया, केवाईसी हो गया, टर्म शीट या जो फाइनल शीट पे आपका साइन हो जाता है, इन्वेस्टर के पास आता है, पर इन्वेस्टर से साइन बैक नहीं आता। और कोविड में ना बहुत हो रहा है, और हमने भी एक्सपीरियंस किया है कि पूरा प्रोसेस हो गया, सब कुछ हो गया, वी वर लाइक कि भाई अब तो हो जाएगा, है ना, बट एट द एंड हमें ये पता चला है ये तो डिले हो गया। इन्वेस्टर कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि वो नहीं दे रहा, डिले कर देगा, और कोविड में आप किसी को कुछ कह भी नहीं सकते। तो ये चीज है कि आपको कब स्टार्ट बहुत पहले से करना होता है, इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना, है ना, कि क्या क्या बोलते, अगर मान लो मेरे पास 6 महीने का या 4 महीने का रन रेट है, अभी मेरे पास इतने पैसे के अगले 4-6 महीने कर लो, तो अभी से स्टार्ट कर लो यार इन्वेस्टमेंट रेस करना, क्योंकि जब तक आपके अकाउंट में पैसे आएंगे वो इतना ही टाइम लग जाएगा, है ना। और एक और चीज इसमें बहुत जो हमने अभी सीखी थी, इसमें ऐसा भी स्टार्टिंग में फाउंडर्स को नहीं पता होता है जो इन्वेस्टमेंट राउंड्स का होता क्या है कि एक इन्वेस्टमेंट राउंड हमने डिसाइड किया कि मान लो हमारा सीड राउंड है 5 CR का, हमें सीड राउंड करना है ना। अब 5 CR का सीड राउंड में 2 एंजल इन्वेस्टर्स आ गए जो कमिट करे 3 CR, बट आप वो 3 CR आपके बैंक अकाउंट में आ भी जाएंगे ना, तो अभी आप यूज नहीं कर पाओगे लीगली, क्योंकि आपका राउंड क्लोज नहीं हुआ है। और उस टाइम आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि अच्छा क्या 3 CR पे मेरे राउंड क्लोज करूँ, या 5 CR तक मैं मतलब 2 CR के लिए और इन्वेस्टर्स को अप्रोच करूँ। तो क्या आपके पास इतना बैंडविड्थ है कि आप वेट कर सकते हो अगले 2 CR को आने के लिए, या फिर अभी क्लोज। तो ये जो छोटी छोटी जो चीज है ना, ये काफी अफेक्ट करती है इन्वेस्टमेंट में, और जो स्टार्टिंग में हमें तो नहीं पता थी, और आई गेस मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स को स्पेशली नहीं पता होता है ये सारी चीजें। बट इसमें होता है कि कोई कोई इंक्यूबेटर्स के पास चले जाता है, इंक्यूबेटर्स अच्छे इंक्यूबेटर्स होते हैं वो हेल्प कर देते हैं, बट अगे मैं बोल रहा हूँ, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट हाँ इट्स अगेन अ ड्रॉबैक कि जो गवर्नमेंट इंक्यूबेटर्स है वो ऐसा कुछ नहीं सिखाते, या फिर इतना वो कुछ हेल्प नहीं करते। And the main issue is here is they have limited space. It's like hundreds of application, only 2 or only let's say 10 of the application will be get selected, and only they get mentoring, and no one else, right? Yeah. इसमें पता है इन्वेस्टमेंट में एक और चीज है कि देयर आर अ लॉट ऑफ, लाइक आप इंटरनेट पे जाओगे रिसर्च करोगे कि माइक्रो वीसी फर्म्स इन इंडिया और एंजल इन्वेस्टमेंट फर्म्स इन इंडिया बहुत सारे हैं। हर की वेबसाइट पे लिखा है कि दे, सुंदर दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के, दे हर कोई लिखता है कि दे इन्वेस्ट एट आइडिया स्टेज, बट प्रैक्टिकली ना ऐसा होता नहीं है ये मैं एक भी बंदे को ऐसे नहीं जानता जो किसी ने भी मतलब अच्छी इन्वेस्टमेंट आइडिया स्टेज पे उठा ली कि उसके पास कुछ नहीं था, बस आइडिया था। और लिखने को क्या, ये मैंने गलती क्या रखी है कि क्या मैं मतलब डिप्रेस हो जाता था कि यार इतनी जगह अप्लाई किया है, ये लिखते आइडिया स्टेज है, करते क्यों नहीं है, मतलब कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आता। एक होता है कि जब आप इनकी वेबसाइट से अगर इन्हें कांटेक्ट करो, ना आई वुड नॉट से ऑल ऑफ देम, बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर लाइक वेबसाइट से कांटेक्ट करो तो वो आपको कभी रिप्लाई नहीं आने वाला, आप वेट करते रह जाओ, आप रिप्लाई का वो नहीं आएगा, है ना। तो ये वो हमेशा अपने पर्सनल कनेक्शंस के थ्रू ही जाना पड़ता है, अदरवाइज नहीं होता है। ये एक ड्रॉबैक है, और ये मैं बोलूँ कि फाउंडर या फिर वही बता सकता है कि हाँ यार ये कैसे क्यों होती है, चीजें कैसे होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें भी कुछ आइडिया था ही नहीं, ऐसा भी होता है क्या। Yeah, so okay, it's a very great session with you.
Deepak, and we really enjoyed it a lot. Thanks a lot for coming onto our platform and giving in such a precious piece of advice to our aspiring entrepreneurs. It will be a very great session. We'll surely connect with you in future to get some more insights about you and your startup as well. Okay, thanks a lot. Okay. So, okay, thanks a lot. Goodbye. Take care. Bye bye. Yeah.